السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی سلمان رشید صاحب. سب سر کو جانتے ہیں، ہم ان کی ویڈیوز بھی دیکھتے رہتے ہیں، باتیں بھی سنتے رہتے ہیں. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں. تھینک یو سو مچ. آپ کی مہربانی آرزو. سر آج ذرا ایکسٹریمزم پہ بات کریں گے. ایک لیڈی لاہور جہاں موجود ہیں، وہاں ان کے پیچھے کچھ ملا جاہل قسم کے لوگ لگ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ جی جو انہوں نے ڈریس پہنا تھا اس پہ عربی میں کچھ لکھا، حالانکہ وہ حلوہ لکھا تھا. اور یہ ملا تو حلوہ اتنا کھاتے ہیں، ان کو حلوہ پڑھنا نہیں آتا کہ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے. اگر ملاؤں کو کچھ پڑھنا آتا ہوتا تو وہ دین کو بھی بہتر جانتے. یہ دیکھیے، تو مطلب اگر کسی نے اسلام کا مذاق بنایا ہے نا تو وہ ہمارے مولویوں نے ہی بنایا. تو یہ اچھا. اور اگر آپ عربی فارسی اردو الفابیٹ تو ایک ہی ہے، اس میں آپ کچھ بھی لکھ لیں تو وہ عربی ہی بن جانی ہے. لکھا ہوا بھی حلوہ ہے. اور بھائی آنکھیں کھول کے دیکھ لو. مجھے کسی نے بتایا کہ حلوہ کوئی برانڈ ہے، پتہ نہیں سعودی عرب میں، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی برانڈ ہے سعودی عرب میں. اور وہ اس کے وہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں کہ توہین رسول کی سزا سن سے جدا. بھائی اس میں کدھر سے کس کی توہین کر دی اس بیچاری نے؟ حلوہ لکھا ہوا ہے صرف اس کے. سر وہی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں پکچرز جس میں وہ برانڈ دکھایا گیا ہے، وہاں کی ماڈلز دکھائی گئی ہیں جنہوں نے وہی ڈریس پہن رکھا ہے اور صاف صاف حلوہ لکھا ہوا ہے. اچھا یہ دکھا رہے ہیں، میں نہیں دیکھا، مجھے نہیں اس کا پتا، لیکن میں نے آج اخبار میں جب پڑھا تو مجھے پتا چلا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے سر. لیکن سر یہ اتنی جہالت ہمارے یہاں کیوں ہے آخر؟ یہ اس قسم کے مولوی، اس کے بعد معافی بھی وہ جو تھی ان سے کہا گیا کہ معافی مانگے. ایک ملا بیٹھا، دو اور اسی جیسے خبیث قسم کے ملا کھڑے ہوئے، ان سے معافی منگوائیے بجائے خود معافی مانگنے کے کہ ان کو لڑکی تنگ سے کیا. معافی منگوائی ہے. بالکل لڑکی سے کہا کہ معافی مانگے. یہ میں آپ کو بتاؤں آرزو، یہ چکر ہے صرف طاقت کا. یہ پاور ہے کہ جی ہمارے پاس پاور ہے. وہ مار کے انہوں نے، خدا نہ خواستہ وہ کچھ ہو جاتا ہے، انہوں نے مار کے کہا پولیس بھی مارتی اور سری لنکا والا بھی ماریا سی کر کے تو ویکھن. یہ طاقت کا وہ ایک ڈسپلے ہے، بڑا ننگا اور بڑا وحشیانہ. اور اب یہ مطلب اس کا کیا قصور ہے؟ اس سے معافی کا ایک ہی منگوائی مولویوں نے. میں سمجھا مولویوں نے معافی مانگی ہے. نہیں، اس لڑکی سے معافی منگوائی ہے. کمال ہی ہے بھائی یہ لوگ. حالانکہ بہت سے مولوی مولانا اشرفی وغیرہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معافی تو ان کو مانگنی چاہیے تھی بجائے اس لڑکی سے کہنے کے کہ معافی مانگے. ہاں تو مولانا اشرفی کو چاہیے نا کہ چڑھ جائے اپنا پورا جسہ لے کے ان کے اوپر اور ان سے کہے کہ یہ وہ غلط کام انہوں نے کیا. دیکھیے ریاست کے، اور مولانا اشرفی جو ہیں وہ ریاست کو ریپرزینٹ آج کل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں. کر رہے سر کر رہے رہے. ہیں تو ریاست کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، وہ ان مولویوں سے جا کے معافی منگوائیں نا. نہیں ہو پائے گا ان سے. لیکن سر لاہور کو تو ہم بڑا ماڈرن سٹی سمجھتے ہیں، سمجھتے تھے ابھی کل تک. تو ہمیں لگتا تھا کہ وہاں بہت روشن خیال لوگ رہتے ہیں، بڑی ماڈرن سٹی ہے. یہ اچانک سے کیا ہوا ہے لاہور کو؟ نہیں، یہ ہمیشہ ہی ایسے ہی تھا. یہ ضیاء کے بعد یہ شہر یوں ہی تھا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا نا، یہ ایک طاقت کی بات ہے ساری کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم کسی کو بھی چاہے مار سکتے ہیں. یہ وہ گھمنڈ ہے جو کہ کام دکھا رہا ہے آپ کو. کیونکہ میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا کہ کراچی میں بھی بہت ماڈرن قسم کے لوگ رہا کرتے تھے، اور لاہور سے بھی ہم دیکھتے تھے کہ جو لیڈیز ہیں وہ ویسٹرن ڈریسز بھی پہنا کرتی تھیں، اور کافی ایک طرح سے اپر کلاس جو کہہ لیجیے، وہ تو کافی ماڈرن قسم کی دیکھی ہم نے. یہ ملا جو ہے وہ ان کا کہا جاتا تھا پنڈی میں ہوتے ہیں، یہ لاہور میں بھی نکل آئے. اور اب مطلب یہ تو کافی غلط قسم کی حرکت ہوئی ہے، اور پولیس نے خیر بچا لیا. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ صحیح کیسے ہوں گے؟ مطلب یہ چیز ختم کیسے ہوگی؟ یہ جب تک کہ یہ کرنے والوں کو سزا نہیں نہ ملے گی، یہ اس طرح کا دنگا کرنے والوں کو سزا نہیں ملے گی، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور آفرین ہے اس نوجوان پولیس آفیسر کے اوپر، وہ شہر بانو نقوی اس کا نام ہے. آپ کو پتہ ہے میں ابھی مل کے آیا ہوں، اور میں گیا تھا کہ میں باقاعدہ میں ایکس فوجی ہوں نا. 1978 میں سپٹمبر میں آخری بار میں نے اپنے کمانڈنگ آفیسر کو سلوٹ کیا تھا.
फौज छोड़ते हुए। और मैंने वो सलूट जाके उस बच्ची को करना था, शहर बानो को, लेकिन वहाँ वो इतने सारे वो थे, कैमरे लेके सहाफ़ी खड़े थे, तो मैंने उसे कहा कि बेटा मैं करने तो तुम्हें वो सलूट आया था, प्रॉपर मिलिट्री सलूट करने आया था, लेकिन ये कैमरों की वजह से नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो कैमरे वालों ने पता फिर वो पूरे सोशल मीडिया पर थोप देनी थी तस्वीर। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने कहा कि लेकिन मैंने पूरा अपना मुद्दा ज़रूर शहर बानो को बता दिया कि मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ, एक तो तुम्हारी दलेरी की किससे मैं मुतासिर हूँ, फ़र्ज़ शनासी, और दूसरा एक जान बचाने के लिए, और जिस दलेरी के साथ किया, जान बचाई। मैं तो उस बच्ची को कह के आया हूँ अभी थोड़ी 2 घंटे पहले। बिल्कुल, नहीं, अच्छा किया आपने। लेकिन सर, जहाँ तक थोड़ा बहुत मुझे याद पड़ता है या मुझे मालूम है, वो ये कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, तो उन्होंने इस किस्म के लोगों को कंट्रोल करने की शायद कोशिश की थी। लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था, जिसपे इस ज़िया-उल-हक के बेटे ने बैठ के टीवी पे बड़े रोने-धोने किए थे कि जी बड़ा ज़ुल्म हो गया, बड़ा ज़ुल्म हो गया करके। अगर वो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता, तो क्या इस तरह के लोगों की कमी नहीं होती? मतलब कुछ कंट्रोल तो होता। मुशर्रफ भी 2 नंबर आदमी था, साला सड़क छाप। वो मैं आपको बताऊं कि उसने एक बार 2001 में जब वो 9/11 वाला वाक़या हुआ है ना, तो उसके बाद उसने क्रैकडाउन, जब उसके परवरदिगारों ने उसे कहा कि क्रैकडाउन कर बेटे इधर, वरना वील स्पैक यू ऑफ टू द स्टोन एज, तो फिर उसने यहाँ पे ज़रा ना आंखें दिखाई गलत किस्म के जो लोग हैं। तो सारे मौलवी थोड़ा ये इस तरह के होते हैं, मैं बड़े अच्छे मेरे यार दोस्त हैं, आलिम लोग हैं, बिल्कुल पक्के इस्लाम के ऊपर कारबंद। ये भी नहीं है कि छुप के शराब भी नहीं पीते, जैसे कि कुछ सरकारी मुल्ला छुप के शराब पीते हैं, वो मेरे जो दोस्त हैं वो नहीं है। तो उसके बाद मुशर्रफ फिर फुस करके उसकी हवा निकल गई, और मुझे याद है जब उसने आंखें दिखाई थी ना, तो हमारे यहाँ कोई लोकल एक मस्जिद थी, वहां से एक मुल्ला के रोने की आवाजें आ रही थी कि अब आपको मिंबर और मेहराब से कभी अल्लाह का नाम नहीं सुनाई देगा। ऐसा कहीं नहीं कुछ भी होने जा रहा था। सारे मुसलमान, अब मेजॉरिटी मुसलमानों की है, पता नहीं 97% के कितने, तो इस मुल्क में आपको खुदा का नाम नहीं सुनाई देगा, ये वो तो रोना पीटना था। लेकिन जब मुशर्रफ की फूंक निकली ना, तो मैंने तब कह दिया था, वो 2002 में ही शायद निकल गई थी, मैंने कहा कि हुण तुसीं मुल्लियां नूं नहीं दब सकते। अब उन्हें पता चल गया कि जी ये है। तो वो लाल मस्जिद, और फिर पता नहीं किन जजेस ने हुक्म दिया कि लाल मस्जिद दोबारा बनाई जाए, और वो जो मौलवी, जो क्रिमिनली इंक्लाइंड मौलवी थे, वो जो बुर्का पहन के जो भाग है रहा था। वो बुर्का पहन के भाग रहा था, वो देखे ना, उसको तो बेइज्जत होना चाहिए था, उसको तो लितर पड़ने चाहिए थे। वो बुर्का पहन के जा रहा था, तो लेकिन उसकी वही इज्जत है, लोग उसके पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों को, लोग ना किरदार को बिल्कुल वो जिसे कहते हैं परख नहीं सकते। हम ये मेरे घर के नजदीक एक, ये कुछ 4 साल पुराना वाकया है। एक मस्जिद के अंदर मौलवी ने एक बच्चे के साथ ज्यादती की, जो कि कुरान पढ़ने आता था। वो लोगों ने वो उस बच्चे के बाप को कह कू के पुलिस में वो केस भी करा दिया, और उसके बाद वो लोगों ने जी बड़े लोगों ने मिलकर तस्फिया करा दिया। और भाईजान, इसमें तस्फिया क्या है? एक 11 साल का लड़का रेप हो गया, और मतवातर पता नहीं कब से रेप हो रहा था। तो उसने जब इनकार किया मस्जिद जाने को, तो वो फिर पता चला कि वो ये हो रहा है। वो उसमें तस्फिया क्या है? उसमें तो सजा मिलनी चाहिए जो ये काम कर रहा था। सर क्या होता है तस्फिया, तस्फिया क्या करा, होता है? सर वो क्या होता है? मैं सुलह ऑडियंस के करा लिए दी कि पूछ नहीं रही हूँ जी कि कोई क्या बात, होता है। अच्छा। उनकी सुलह करा दी कि नहीं जी, अच्छा चले कुछ नहीं जी, चलो कोई गल नहीं जी, तुसी मेरे मुंडे नूं रेप कर दे रहे हो, कोई गल नहीं, ठीक है, खैर सही है। और फिर मुझे किसी ने बताया, मुझे मस्तनद ज़राए से पता चला कि वो बाप जो था वो उसी मौलवी के पीछे जाके नमाज भी पढ़ता था। तो हम हमारे जो वैसे हमें इस्लाम का हर वक्त वो रहता है कि जी इस्लाम को खतरा है, इस्लाम को खतरा है, ये है वो है। अभी पीछे एक वीडियो आई हुई थी, वो मुल्ला लोग जो है वो बैठ के
ये जो होमोसेक्सुअलिटी ये जो करते हैं मस्जिदों के अंदर काम, उसको डिफेंड कर रहे थे कि नहीं वो कभी कभी बहक भी तो सकता है, शैतान गालिब आ जाता है। हमारे ऊपर तो नहीं गालिब आता शैतान, पता नहीं कैसा शैतान है साला, वो मौलवियों के ऊपर ही गालिब आता है, बगैर दाढ़ी के जो है, दाढ़ी मूछ के, उसके ऊपर नहीं गालिब आता। ये तो सर बकरियों के साथ भी कई बार इन मौलवियों की तो वीडियोस आई हैं। हमारे यहाँ तो अजीब ही किस्म का माहौल है। ये खासतौर पे मदरसे जो हैं, मस्जिद और मदरसे, ऐसी जगह जहाँ पे ये पूरा दिन लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं या ये सब कर रहे हैं, वहीं पे ये सारे काम चलते हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। जी नहीं, यहाँ पे वो हडर्सफील्ड में इंग्लैंड में, वहाँ पे भी एक वाकया हुआ था बहुत साल पहले, मेरे ख्याल में 1997 में जब उधर था या 2006 में, तो मुझे सुनाया गया था मस्जिद के अंदर, लेकिन वो कर रहे हैं वहाँ। तो खैर क्योंकि वो कानून हम मुसलमानों का नहीं है ना, गोरों का है, तो वो मुल्ला को कुछ सजा भी हुई थी और उसे एक्सपेल कर दिया था फिर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जो मुझे बताया गया था। मगर सर जो लोग इस किस्म के लोगों को मार भी डालते हैं ना, जो ये ब्लास्फेमी का जो एक लॉ बना दिया है इन्होंने, पता नहीं क्यों बनाया, खत्म क्यों नहीं करते इसको। कर भी देंगे तो जो लोगों ने समझ लिया वो समझ लिया, खुद ही अपने हाथ में कानून लेके लोगों को मार डालते हैं। उनको सजा भी तो नहीं होती, पाकिस्तान में छूट जाते हैं 2-4 नहीं, साल बाद। हाँ तो और क्या, वो इसीलिए तो ये हो रहा है। और देखिए ना कि आप बाहर निकल के किसी के ऊपर कहते हो इसने तौहीन की है, तो आनन फानन 60-70 हजार बंदा इकट्ठा हो जाएगा और ईंटें मार मार के मार देंगे। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि जिसने ये कहा है कि तौहीन की है उसने क्या सुना, उसने उसको उसको तो उसकी तो इन्वेस्टिगेशन होगी कोई नहीं। मगर सर तो अगर किसी दूसरे रिलीजन के ऊपर ये लोग जब बोलते हैं तो उसकी कोई सजा नहीं है। यहाँ पे चर्च जला दिए कुछ टाइम पहले, आपको याद होगा लाहौर में आसपास ही जो है वो कितने चर्च जला दिए, मंदिर तोड़ देते हैं, गुरुद्वारे तोड़ देते हैं और दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ गलत करते हैं। तो तब तब कुछ नहीं होता, तब ना कानून हरकत में आता है ना इनकी गैरत कोई जागती है, सिर्फ इस्लाम के लिए जागती है। और वो भी ना गलत तौर पे, मतलब कोई आप एक तो इस्लाम देखिए, इस्लाम में तोहमत लगाना भी तो बहुत बड़ा जो हम्म। वो गुनाह जुर्म माना जाता है ना। ये किसी के ऊपर आप तोहमत ही लगा रहे हैं ना कि जी इसने तौहीन की है, तो वहाँ इनका पता नहीं क्यों इन्हें आ जाता है ये। नहीं यार, ये बस हम ठीक नहीं हो सकते, सर बहुत हमारी तो बिगड़ गए। फौज, सर फौज में रहे, फौज भी तो जो हर चीज में इस्लाम को ले आती है। जिहाद फी सबिलिल्लाह, बताइए ये तो जिहाद फी सबिलिल्लाह क्या होता है? ये तो उसने किया था ज़िया ने, उससे पहले नहीं था, उससे पहले हम और तरह के थे। एक हाँ। बड़ा दिलचस्प है कि मैं कई अपने नौजवान जो अब मैं कुछ जानता हूँ जो अभी पीएमए से निकल के आए हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब हम पीएमए में थे ना, तो जब वो बेनेट फाइटिंग हमें ट्रेनिंग दिया करते थे, तो उसमें हम नारा लगाते थे हैदर, और जोश अपने आप को दिलाने के लिए। तो उसके बाद हम ज़रा सुन्नी फौज बन गए ना सारे के सारे। तो मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी भी हैदर का या अली का या हैदर का नारा लगता है वहाँ पे फौज में? मुझे कुछ है ये नहीं लगता सर होगा, एक इंडियन पता एक्टर नहीं है क्या मिथुन बात है। चक्रवर्ती। सर एक इंडियन एक्टर है मिथुन चक्रवर्ती, आई डोंट नो उनकी मूवीज आपने देखी है कि नहीं। वो भी जब फाइट सीन होता था तो या अली कह के टस विलन को मारते थे तो मुझे थोड़ा मजा आता था देखकर। हम लोग बड़े शौक से सुनते थे कि अभी हाँ, मिथुन मिथुन जो है वो या अली का नारा मारेंगे। तो वो हाँ, पता नहीं अभी होता है या नहीं होता, लेकिन अब जी। मुश्किल लगता है मुझे कि अब अली का नारा लगता होगा पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के अंदर। हम्म। हाँ, वैसे मगर सर कहीं ना गमनाक, कहीं जी। मैंने कहा गमनाक माहौल है ये जो है तो हाँ। ये ठीक तो नहीं है। यानी हम सोचते नहीं है, ये हम सिर्फ ये जो मैंने आपको कहा ताकत के लिए हम ये कर रहे हैं कि जी बंदा मार दो। हाँ सर यहाँ पे लोग सोशल मीडिया पे और उस पे इतनी धमकियां लोगों को देते हैं, टॉलरेंस खत्म हो गई है हमारे अंदर से। हम किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं।
मुझे ऑलमोस्ट हर वीक कोई ना कोई मैसेज आया होता है, कोई कह रहा होता है, बल्कि एक ने तो कुछ टाइम पहले लिखा था 10 गोलियां सर में मारूंगा, फिर अभी तक आया नहीं, मेरे ख्याल गोलियां ढूंढ रहा होगा। लेकिन बाकी सब जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लिखते रहते हैं। क्यों टॉलरेंस क्यों खत्म हो गई पाकिस्तान सोसाइटी से? हम किसी की बात सुनते क्यों नहीं, बर्दाश्त क्यों नहीं है? पता नहीं, हमें पहले वैसे थी, पहले तो हुआ करती थी, बहुत बर्दाश्त होती थी। लेकिन जब आप एक कौम को, एक पूरे मजमे को एक ही तरह से ब्रेन वॉश करते रहे ना, वो ज़िया ने किया ना। कोड़े लोगों के सामने पब्लिकली कोड़े मारे गए, पब्लिक हैंगिंग्स तो यहाँ पे नहीं हुई, लेकिन ये कोड़े मारना तो पब्लिक को इकट्ठी करके किया जाता था ना। तो आप ब्रूटलाइज हो जाते हैं, आपकी जो वो जो है ज़हन के अंदर वो इस किस्म की चीज़ ये भर जाती है कि आप फिर कुछ बर्दाश्त करने की आपकी सलाहियत कम होती जाती है। ये जो ब्रूटलाइजेशन है हमारे रूह की, ये उसी का नतीजा है कि सर अब हम हम ना किसी की बात सुनते हैं। बिल्कुल, लेकिन हाँ, लेकिन सर हम बताइए। में हम सर एक चीज और यहाँ पे मैं कहूंगी कि हम शुरू से अपने दिल सख्त नहीं कर देते। छोटे छोटे बच्चों को हम वो ईद के टाइम पे छुरियां फिरवाते हैं, बकरों और दुम्बे और इस तरह के उसके ऊपर, तो बच्चा शुरू से ही चाहे वो चिल्ला के रो रहा हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे आदी हो जाते हैं। वो भी हमें अजीब नहीं लगता? मतलब मैं तो खैर नहीं करती, मैं तो बिल्कुल ना कुर्बानी करती हूँ और ना मेरे घर में कोई तरह से कुछ लाता है कोई। लेकिन ये कि पिक्चर्स आती हैं सोशल मीडिया पे, ऐसा लगता है बहुत मजा आ रहा है, आप किसी की गर्दन काट रहे हैं, उसकी पिक्चर्स लगा रहे हैं, इससे भी तो हमारे वो दिल सख्त नहीं हो गए? वाह, बिल्कुल बच्चों से नहीं कराना चाहिए, लेकिन वो करा रहे हैं। हमारे दीन में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चा छुरी हाँ, फेरे, नहीं है ना। तो नहीं। ये अपना अब ये करते हैं, ये बिल्कुल वो दिल सख्त होता है, ब्रूटलाइज हो जाता है बच्चा। एक वीडियो मैंने देखी थी कि वो एक बच्चे ने भेड़ बचपन से लेके पाली हुई थी, वो 8-9 साल का बच्चा, वो कहीं साल 2 साल पहले भेड़ लाए होंगे, तो वो उसके साथ बहुत मानूस था। वो जब पता चला कि इसको वो ज़िबा करने लगे हैं ईद के ऊपर, लाहौरी बच्चा था ना, तो वो पंजाबी में उन्होंने अपने बड़ों को गालियां माँ बहन की देना शुरू हो गया। हम्म। और लेकिन उन्होंने कर दिया, वो जाहिर है वो फिर उसके ऊपर कितना बुरा असर हुआ होगा। उसके लिए वो ऐसे ही थे ना जैसे कोई भाई बहन कत्ल हो गया। हम्म। बिल्कुल। और इस चीज को कम करना चाहिए। हम मैंने तो ये भी देखा है कि उस ईद से पहले जो है फ्रीजर बड़े बिकते हैं पाकिस्तान में। कमर्शियल आ रहे होते हैं कि डॉलर्स का फ्रीजर ले ले और उसका फ्रीजर ले ले, वो पूरा काट कूट के घर में ही रख लेते हैं, कहीं बांटते बांटते भी नहीं है। नहीं, वो कुर्बानी वाला भी जो कॉन्सेप्ट है, वो ये दिखावा है अब तो। हाँ। मतलब ये भी हर एक से पूछ लें आप कि जी हम तो 3 लाख का ये बैल लेके आए हैं, कोई 2 लाख का बकरा लेके आए हैं, और हमने जनाब 8-9 लाख रुपए इन सारे जानवरों पे खर्च किए हैं, ऊँट, ये सब ये ड्रामे दिखावे के हैं। हम हमारे बचपन में चुपचाप से लोग, ना किसी ने कभी पूछा था, ना किसी को कोई दिखाया करता था। अपने ला के जो कुर्बानी करनी होती थी वो कर लिया करते थे। तो सर वो तो ये कहा गया है कि आपकी सबसे प्यारी चीज जो है उसको आप कुर्बान कर दें। तो आजकल तो लोग, जैसे किसी को अपनी गाड़ी बहुत प्यारी है, गाड़ी बेच के लोगों लोगों को पैसे दे दे, किसी का आईफोन है, आईफोन को बेच के पैसे देते, वो नहीं देते। वो एक दिन 2 दिन पहले जानवर लाते हैं और उस बेचारे को खामा खाई में जो है ना अजीब तरीके से काट के, और वो कुर्बानी कहलाती है और हमारी। अपनी हवस, गोश्त की हवस, जो आप कह हाँ। रही हैं कि वो फ्रीजर भरे होते हैं, लोगों के हाँ वाकई बिल्कुल। फ्रीजर भरे होते हैं। बांटा भी नहीं जाता, जो कि तरीका बताया गया है दीन के अंदर कि इस तरीके से आपने बांटना है, हाँ। वो भी नहीं, वो घरों में ही कभी था। आपने नोटिस किया है इस ईद के बाद सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं? क्योंकि वो हाँ जी, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, सबसे बिल्कुल। ज्यादा बीमार होते हैं। और ये इतने साल से जो बकरा ईद गर्मियों में आती है उसमें ज्यादा होते हैं, क्योंकि गर्मियों में जरा मेरा ख्याल है पेट जल्दी चालू हो जाता है। अब आगे फिर सर्दियां आ जाएंगी, फिर ये शायद गुजारा कर लें, लेकिन बाकी बीमार बहुत पड़ते हैं। बहुत बीमार, क्योंकि खाते इतना ज्यादा है। और फिर ये कि इस चीज को कम होना चाहिए। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं तो खैर नहीं करती, मुझे तो लोग बहुत बुरा भला कहते हैं, क्योंकि मैं ना कुर्बानी करती हूँ, ना कुर्बानी का गोश्त कुछ मेरे घर में नहीं आता। मैं नहीं, भाई यहाँ मत लाना। लेकिन ये कि मुझे तो बाहर भी नहीं निकलती। Sorry। मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती, इसलिए कि वो जो
रोड के ऊपर खून और वो होता है, वो देख के मुझे तो चक्कर आ जाते हैं, मैं दिल की बड़ी कमजोर हूँ। तो मगर ये कि लोग बहुत मजे लेते हैं, लोग बड़े सोशल मीडिया पे पिक्चर्स लगाई जाती है, लगता है बड़ा कोई जबरदस्त वही काम ना, किया है। वो नहीं, ये सारा दिखावा है। ये तो वो जो कुर्बानी की जो स्पिरिट है, जो उसकी असल हम्म। रूह है कुर्बानी की, उसको ये जाया कर रहे हैं दिखावा कर करके। ये कोई तरीका तो नहीं है जी, तो देखो। और है हम सारी की सारी चोर कौम, वो जो है, मुझे अभी नाम मुझे नहीं सही से पता, लेकिन मैंने सुना था अपने फादर से कि पता नहीं भुट्टो साहब के जमाने में या पता नहीं किसके जमाने में, जो वो जक़ात के जो मिनिस्टर थे, वो 10 लाख जो है वो जुए में हार गए थे, तो उन्होंने हाँ, वो जक़ात का पैसा उनका मैं अभी तक नाम ढूंढ रही हूँ, हर किसी से पूछती हूँ उनका नाम पता लग जाए मुझे एक बार। तो वो ज़िया के ज़माने में हुआ था, वो अपने अब्बा से फिर पूछें आप, वो मेरे ख्याल ज़िया के अब्बा ज़माने तो में अब है नहीं ना, नहीं तो मैं उनसे पूछ लेती। अच्छा, लेकिन मैं इसीलिए मुझे नाम नहीं पता लग रहा, लेकिन मैंने डेफिनेटली ये बात उनसे सुनी थी। तो हाँ, मैंने कहा ये तो हाल है हमारा, ज़कात के बिल्कुल। पैसे लेके वो हार गए जुए में। ये तो हर कोई जानता है कि जी ये जो हज औकाफ वाला महकमा है, इसमें माल पानी बड़ा है। हाँ, मतलब दीन की खिदमत करने के लिए आ रहे हैं सो कॉल्ड, और उसमें से रोका छाप रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। पता नहीं क्या और वो है उसमें। कहते हैं सादा जिंदगी गुजारो, और कोई मौलवी जो है वो 2 करोड़ की गाड़ी से नीचे बैठता ही किसी में नहीं। नहीं, बिल्कुल। नहीं, ये सब झूठ, सब ढकोसला है, ये सब मुनाफिकत है। आप बस छोड़ दें ये जो है ना, कुछ नहीं होना हमारा, हम सही नहीं होने, हमें सही नहीं बिल्कुल होना। हम नहीं होंगे। वरना सऊदी अरब बदल रहा है, लेकिन पाकिस्तान बदलने को तैयार नहीं। हाँ, वो पता नहीं सऊदी अरब से फिर हमारे यहाँ मौलवियों के लिए पैसे आया करेंगे या नहीं, आते हैं ना अभी तो। हाँ, एमबीएस ने तो नहीं देने, अगर ये यही हरकतें रही तो, इसलिए कि वो तो इसराइल को भी तस्लीम करने जा रहे हैं, ये तो फिर हाँ, उछलना शुरू कर देंगे। फिर पता नहीं ये लोग कितना कोसेंगे उसको, सऊदी अरब को। अभी तो हाँ। इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। फिर ये बड़ा दिलचस्प सिचुएशन बनने जा रही है कि जो अब सऊदी अरब में तब्दीलियां आ रही हैं, हाँ। और जो जो हमारे जो इस्लाम के जो मुकद्दस मकामात हैं, हम्म। उनको भी वो ओपन टू टूरिज्म करने जा रहे हैं। तो फिर हमारे यहाँ मौलवियों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? इन्होंने क्या करना है? वो मैं देखने के लिए बड़ा बेताब हूँ कि वो जल्दी आए वो वक़्त। मैं भी चाहती हूँ इसराइल को सऊदी अरब तस्लीम कर ले, और फिर पाकिस्तान भी कर ले, और हमारे पासपोर्ट में जो लिखा हुआ है कि आप इसराइल नहीं जा सकते वो हटा दें, ताकि मैं सबसे पहला विजिट मैं इसराइल का करूंगी उसके बाद। वैसे मैं अब ये नेतन्याहू जैसे याहू के होते हुए मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसने ज़ुल्म तो ढाया है बाहर, और उसके नहीं, खैर बाद वो तो है, गलत तो किया है। तो बाद में ज़रूर चला जाऊँगा। कि तो सर हट हमारे जाएगा हम। हमारे साथ ही आज़ाद हुए ना, बल्कि हमसे 1 साल बाद उनका मुल्क बना। हम्म। हम 47 में, वो 48 में, वो हमसे कहीं आगे हैं। हम इधर भीख पे पल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर, 2 कंट्रीज जहाँ जाने का मुझे बड़ा शौक हुआ करता है, एक भारत और एक इसराइल, दोनों को हम दुश्मन बताते हैं। और ये कि बिल्कुल, खैर वो उन्होंने गलत तो किया फलस्तीन में, लेकिन ये कि बहरहाल हमास ने पहले अटैक किया था तो उन्होंने खुद एक मुसीबत गले ले ली, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए था जो बाद में हुआ। हाँ, मगर कहीं ना कहीं मगर इसराइल को तस्लीम करने बहरहाल जो है वो जाएगा सऊदी अरब, और उसके बाद देखते हैं और पाकिस्तान क्या। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा आप लगा आपसे बात करके। थैंक आपकी यू। मेहरबानी आगे। थैंक यू सर।